हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 17। ये चैप्टर जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी भारत की जलवायु, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है भारत के अंतर्गत। देखिए, ये चैप्टर जो होगा कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे सीबीएसई के हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी ये जो है चैप्टर काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, और इसमें जो है हम भारत के जो है जलवायु के विषय में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और उसके हर एक पहलू पर जो है विचार करेंगे। लेकिन आपको पता है, ये सब करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। There is a most important topic arrive here, the concept and mechanism of monsoon here. What is the mechanism monsoon here? The monsoon refer to a system of winds in a tropical regions under which is the directions of wind is a reverse is a completely between to the summer and winter season here. Under this system, the winds blow from a land to sea in a winter and from sea to land in a summer. There is an important point to note down your copies. There are wind blow from the land to sea in a winter and from sea to land in a summer. Therefore, the most of the rainfall is the region influenced by the monsoon is received in a summer season, and while the winter season is generally dry. The monsoon implements their system of tropical winds with the complete reversal in there is a direction between to winter and summer here. According to their traditional belief, the monsoon is caused by the differential heating of land and sea. Due to the higher temperature over to land in a summer, a low pressure area developed over to the continent and winds blow from the reservoirs is ocean toward the land. And this is a wind of the maritime origin and hence the cause of ample rainfall in a summer year. On the other hand, the continent become a colder than the warnings is the ocean in the winter. As a result, a high pressure area is devolved over to the continent. Therefore, winds blow from land to sea in a winter, and these winds begin to continental origin are dry and do not a case of rain. And this traditional story theories as a monsoon has been ascertained by their German meteorologist Hahn, and his argues there is the different heating of land and sea not enough to the causing of seasonal reversal of their wind at the global scale. He has explained there is origin of the monsoon on the basis of the seasonal shift of the pressure and wind belt under the influence of the shift of the vertical ray of the sun. According to this theory, has the vertical ray of the sun shift is the northward over the tropical of Cancer in a summer season. The intertropical is a convection zone. There is an important point. There is a full form ITCZ. There is an intertropically convection zone here, and also shift to the north. This result in the formation of the low pressure area over the northwestern part of India, and this low pressure is further intensified by the high temperature in this region. And this low pressure area
The air from, there is important here, this low pressure area suck the air from the Indian Ocean toward to the Indian landmass in form of southwest monsoon. In the winter season, there are ITCG here, intertropical convection zone here, and shift is the northward, and mild pressure, high pressure is produced over to the northern part of India here. And this high pressure is further intensified by the equator, what shift to be a subtropical high pressure belt. Due to the high pressure over the north India, the wind start blowing from a northeast as a retreating monsoon here. And according in the recent observation, the original Indian monsoon influenced by the number of other factors. Besides, there is a differential is the heating of land and sea and the seasonal shift of pressure and wind belt here. One of the monsoon important factor among this in the system of subtropically versatile and tropical estuarine jet stream here. The subtropical versatile jet streams blowing over to India in a winter and cases to high pressure over to northern India. It thus intercepted, there is a northern east monsoon here. And this jet stream shift the northward behind is India is a summer season, and tropical storage jet is developed over India in this season. And this behavior of jet stream is a partly responsible for the variation in the time of onset of southwest monsoons over India here. The next is a box here is the most important. According to the traditional belief, monsoon is caused by the differential heating and cooling of land and sea here. And here, Fulhan and German meteorologist is often that a monsoon originate due to the shifting of planetary pressure and wind belt here. And third point is important here. According to the modern scientist, the origin of Indian monsoon is influenced by a number of factors, and important among them to the system of jet stream here. There is the most important पॉइंट, मानसून की अवधारणा एवं क्रियाविधि। देखिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आया है, मानसून की अवधारणाएं एवं क्रियाविधि। कहते हैं मानसून की अवधारणाएं क्या और क्रियाविधि किस बात को यहाँ वैलिड करता है। कहते हैं मानसून से तात्पर्य उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से ऐसे वनों के तंत्र से है जिसमें जो है ग्रीष्म और शीत ऋतु में पवनें अपनी दिशा पूर्णतः पलट लेती है, और शीत ऋतु में ये पवनें जो है स्थल से समुद्र की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में समुद्र तल की ओर चलती है। देखिए ये पॉइंट जो है नोट करने वाली है कि शीत ऋतु में ये पवनें जो है स्थल से समुद्र की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं इसलिए मानसून पवनों का प्रभाव जो है प्रदेशों में अधिकांश वर्षा जो है ग्रीष्म ऋतु में होती है, यानी मानसून पवनों के प्रभाव प्रदेशों में अधिकांश जो है वर्षा ऋतु में ही होती है, और जबकि शीत ऋतु सामान्यतः काफ़ी शुष्क होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है कि देखिए जबकि शीत ऋतु जो सामान्यतः शुष्क होती है। और देखिए पॉइंट की बात करें तो मानसून से तात्पर्य उष्णकटिबंधीय प्रदेशों ऐसे पवनों के तंत्र से है जिसमें ग्रीष्म और शीत ऋतु में पवनें अपनी दिशा पूर्णतः पलट लेती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ जो है बॉक्स में दर्शाया गया है। कहते हैं परंपरागत विचारधारा के अनुसार स्थल एवं समुद्र जल के गर्म होने की प्रवृत्ति में अंतर के कारण मानसून का जन्म होता है। तो देखिए मानसून का जन्म आप समझ गए वो किस प्रकार होता है कि देखिए स्थल एवं समुद्र जल के गर्म होने की प्रवृत्ति में भी जो है मानसून का जन्म होता है। जब समुद्र जल जो है काफ़ी गर्म होती है तो भाप बनती है, और भाप बन के जो है मानसून का जो है उत्पत्ति होती है। ग्रीष्म काल में स्थल पर जो है ऊंचे तापमान के कारण जो है महाद्वीप पर जो है निम्न दाब क्षेत्र बन जाते हैं, यानी ग्रीष्म काल में स्थल पर जो है ऊंचे तापमान के कारण जो है महाद्वीपों पर जो है निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, और पवनें जो है निकटवर्तीय महासागरों से स्थल की ओर चलने लग जाती है, यानी निकटवर्तीय महासागरों से ये जो है चलने लगती है, और ये पवनें समुद्री भागों में पैदा होती है। अंततः जो है ग्रीष्म काल में पर्याप्त वर्षा करती है। कहते हैं दूसरी ओर शीतकाल में महाद्वीपीय निकटवर्तीय महासागरों की तुलना में अधिक ठंडे हो जाते हैं। तो कहते हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शीतकाल में महाद्वीप निकटवर्तीय महासागरों की तुलना में अधिक ठंडी हो जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप महाद्वीपों पर जो उच्च दाब क्षेत्र बन जाते हैं, यानी परिणाम स्वरूप महाद्वीपों पर जो है उच्च दाब क्षेत्र बन जाना स्वाभाविक रहता है, और इसलिए शीतकाल में पवनें जो है स्थल से
समुद्र की ओर चलती है। यानी इसलिए जो है शीतकाल में पवनें जो है स्थल से समुद्र की ओर चलती है, क्योंकि ये पवनें महाद्वीपों की विशेषताएं लिए हुए होती है। यानी ये पवनें देखा जाए तो यहाँ पर जो है महाद्वीपों की विशेषता लिए हुए होती है। अंततः ये काफ़ी शुष्क होती है और वर्षा नहीं करती है। मानसून के इस परंपरागत सिद्धांतों को जर्मन जो है मौसम विज्ञानी फ्लेन ने जो है आलोचना भी की थी। यानी देखा जाए तो मानसून की इस परंपरागत सिद्धांत को जर्मन जो है मौसम विज्ञानी फ्लेन ने इसकी आलोचना भी की थी। उसके विचार से जो है भूमंडलीय स्तर पर पवनों की दिशा में अमूल्य परिवर्तन के लिए मात्र जो है स्थलीय एवं समुद्री भागों के विभिन्न प्रकार से जो गर्म होना काफ़ी नहीं है। उसने जो है मानसून की उत्पत्ति और सूर्य की सीधे किरणों के जो है खिसकने के प्रभाव से वायुमंडल दाब पेटियों के जो है मौसम के अनुसार खिसकने के आधार पर स्पष्ट किया है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जो है यहाँ पर जो है फैमुल ने दिया था, काफ़ी महत्वपूर्ण था फैमुल के जो है फ्लेन के फॉर्मूले, ठीक है, जिसमें इसने बताया था कि उसने मानसून की उत्पत्ति के सूर्य की सीधे किरणों से जो है खिसकने के प्रभाव से वायु दाब एवं पवन पेटी के मौसम के अनुसार खिसकने के आधार पर स्पष्ट किया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु के उत्तर की ओर कर्क वृत्त पर जो है लंबवत पड़ती है। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर कर्क वृत्त पर लंबवत पड़ती है तब अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बनता है। इसको हम ITCZ कहते हैं, यानी अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में एक निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है और यह निम्न दाब इस प्रदेश के उच्च तापमानों के कारण और अधिक गहन हो जाती है और यह निम्न दाब क्षेत्र जो है हिंद महासागर से वायु के दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारतीय भूभाग की ओर खिंचती चली जाती है और कहते हैं शीत ऋतु में ITCZ जो है दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती है और भारत के उत्तरी भाग पर जो उच्च दाब विकसित हो जाते हैं और यह उच्च दाब जो है उपोषण उच्च दाब पेटी के जो है विषुववर्तीय वृत्त की ओर खिसकने से और अधिक गहन हो जाती है और उत्तरी भारत के इस उच्च दाब के कारण पवनें जो है उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में चलने लग जाती है, जिसका दिशा जो है उत्तर पूर्व से जो है दक्षिण पश्चिमी की ओर होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है। इससे भी अधिक जो है नवीन अवलोकन के अनुसार भारतीय मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं समुद्र भागों के विभिन्न रूपों से गर्म होने तथा दाब एवं पवन पेटियों की मौसमी स्थानांतरण के कारण हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति स्थल व जो है समुद्री भागों के विभिन्न रूप में जो है गर्म होने तथा दाब पवन पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण हुआ है। इसके देखा जाए तो बहुत से कारकों को जो है प्रकाशित होती है, यानी इन सब कारक बनती है। इसमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक जो है उत्पोषण कटिबंधीय पश्चिमी तथा जो है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट वायुधाराएं हैं और जो है उत्तोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट वायुधारा शीतकाल में भारत के जो है ऊपर चलती है और इससे जो है उत्तरी भारत में जो है उष्ण दाब क्षेत्र का निर्माण होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इस प्रकार यह उत्तर पूर्वी मानसून पवनों को अधिक शक्तिशाली बनाने में काफ़ी मदद करती है और यह जेट वायुधारा शीत ऋतु में भारत से दूर उत्तर की ओर खिसकती जाती है और तथा कहते हैं इस ऋतु में जो है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट वायुधारा का विकास भी हो जाता है और इस जेट वायुधारा का आगमन भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आरंभ से होने के साथ साथ ही होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया जाता है। यदि यहाँ पर हम एक बॉक्स की बात करें, पॉइंटों की बात करें, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि परंपरागत मत के अनुसार जो है स्थल एवं जलीय भागों के विभिन्न प्रकार से गर्म होने के कारण जो है मानसून की उत्पत्ति होती है और कहते हैं जर्मन मौसम विज्ञानी के अनुसार मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख कारण वायु दाब एवं पवन पेटियों का खिसकना ही है, जिसमें कोई दो राय नहीं, सही बात है, क्योंकि आपको पता है कि वायु दाब के कारण ही ऐसा संभव हुआ है। और आधुनिक वैज्ञानिक का मत है कि भारतीय मानसून पवनों की उत्पत्ति के लिए अनेक कारक उत्तरदायी है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जेट वायुधाराएं हैं। तो कहते हैं दोनों बातों को नकारा नहीं जा सकता है, दोनों बात सही है कि जेट वायुधारा भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और दाब वायु दाब और पवन पेटियां भी अपने जगह सही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो,
तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिसकी वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरा जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।